Hope you all are doing well. Today we got another session arranged by Women Fortune Tech. Today's session is actually more about digital skills, and we have got a very talented instructor for that, who is Maha Riaz, a senior UI and UX designer at Aura Digital Agency. She is also a mentor at Den. Today she will guide us about UI and UX design course. So over to you, Maha Riaz. Ma'am Maha Riaz, can you hear me? हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Sorry, there was an issue. Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Let me introduce myself first of all. So, as Miss Maria said, my name is Maha Riaz. Basically, I'm from Islamabad and working as a UI UX designer in Aura Digital Agency. And I have 4 years of experience in this field. And currently, I'm working with Aura Digital Agency and also some international clients and on project base. Apart from that, I have worked with the different institute as a mentor instructor of a UI UX designer and leading the UI UX design internships in digital empowerment network as well. So it's a pleasure to meet you all. Let's start the session. Wait, let me share my screen. Can you start, Miss Maria? Yes, ma'am, you can. Okay, thank you. Are you recording the lecture or is there an option to record? Yes, ma'am, this session will be recorded. Okay, that's great. Wait a little bit. Sorry. Okay. So today our lecture is about UX design. Let me give you a brief introduction about UX design. What is this and how we can work with this? I think उर्दू में देना चाहिए लेक्चर मैम मारिया या इंग्लिश में? Okay, let's start with Urdu. मैम जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें दें, इंग्लिश में या उर्दू में। सही है, ओके। So UI UX design क्या चीज़ है? UI UX design is basically two terms we can say UI and UX. UI and UX. UI means user interface and UX means user experience. User interface. Sorry for my bad handwriting. User experience. सही है। User, who is the user? User means हम वो लोग जो किसी चीज को यूज करते हैं। तो किस चीज को यूज करते हैं? लाइक डिजिटली अब जो भी कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है, किसी चीज को भी आप ले लें, जिस चीज को हम यूज करते हैं डिजिटली आजकल अपने मोबाइल पर या किसी लैपटॉप पर, उसको हम कहते हैं द प्रोडक्ट और द थिंग वी आर यूजिंग। लाइक यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस आर ऑल अबाउट द प्रोडक्ट digitally we use. Let me show you.
Okay, so here is a brief definition of user interface and user experience, UI and UX. First of all, UI, user interface, means all the colors, the fonts, the images we are using on an app. Like for example, फूड पांडा एक ऐप है या फिर दराज एक ऐप है, मोबाइल ऐप जो हम यूज करते हैं, या कोई वेबसाइट है गूगल की, उस पे जो हम कलर्स देखते हैं, हम कोई लिखा हुआ कोई कंटेंट देखते हैं, फॉन्ट्स देखते हैं, या फिर हम कोई इमेजेस हैं वो देख रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस। वो यूजर का इंटरफेस है, जो यूजर लाइक हम यूजर, हमें जो नजर आ रहा है इंटरफेस, उसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। ये यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है इंग्लिश में, ठीक है, डेफिनेशन। लाइक बटन्स, कलर्स, टाइपोग्राफी, लाइक फॉन्ट्स एंड लेआउट, इसको हम कहेंगे यूजर इंटरफेस। एंड यूएक्स मीन्स यूजर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन्स लाइक आप एक यूजर हैं, आप एक ऐप को यूज कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा। लाइक आप एक ऐप यूज कर रहे हैं फूड पांडा की, आप फूड ऑर्डर करते हैं, तो इस दौरान आपका एक्सपीरियंस स्मूथ रहा है, आपको इजीली, जो आप फॉर एग्जांपल आप एक बर्गर ऑर्डर करना चाह रहे हैं, इजीली आप उस फ्लो में गए हैं, आपने उसे चेकआउट किया है, ऑर्डर किया है, या फिर आपको मुश्किल हुई है, इसको हम कहेंगे एक्सपीरियंस। यूजर का जो एक्सपीरियंस होगा वो प्रोडक्ट यूज करने में, इसको हम कहेंगे यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये इसको देख लें, यूजर एक्सपीरियंस इज ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ अ यूजर when they interact with the product or services. Services कोई भी हो सकती है, product कोई भी हो सकता है। For example, smooth checkout process or easy navigation. So this is the brief and very easy definition and difference, we can say that, about UI and UX. So, okay, this is a visual version of UI UX. You can say that, for example, this is a website, okay. UI UX वेबसाइट में जो कलर्स हैं, लेआउट है, विजुअल डिजाइन है, इसको हम कहेंगे ये यूआई का पार्ट है। और इस तरह अगर हम वर्सेस देखें यूएक्स को, यूएक्स के अंदर आ जाता है यूजर रिसर्च, पर्सोनास, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, दीस आर द टर्म्स वी यूज फॉर यूजर एक्सपीरियंस। ये हम जब करेंगे इंशाल्लाह कोर्स में, तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं जब एक प्रोडक्ट हम डिज़ाइन करते हैं, या मतलब कि किसी ऐप को या वेबसाइट को, तो हम यूज़र एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़, किस किस स्टेप्स को लेकर चलते हैं, उनको हम ये कहते हैं। लाइक हम पहले रिसर्च करते हैं, हम पर्सोनास क्रिएट करते हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद जाके हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट है, हमको बनाने में हम डायरेक्ट डिज़ाइन कभी भी नहीं करते, पहले हम उसके कुछ प्रोसेस उसे फॉलो करते हैं जो यूएक्स के पार्ट में आता है, उसके बाद जाके हम उसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। Okay, so this is another we can say that simple and easy definition without words. Like अगर हम इस पे देखें, इस पे हम UI UX जो है ना, बेसिकली वो जस्ट प्रोडक्ट पे नहीं होता, वो नॉर्मल घर की जो चीज़ें हैं, सामान है, या कोई ऐसी एक्सपीरियंस है, उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दो टाइप के बैग होते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एक ये होता है लाइक जिसमें हम होल्ड करके इसे हम इसके जो टायर्स हैं उसके साथ हम इसे मूव कर सकते हैं, और एक ये वाला होता है विदाउट टायर्स, मतलब कि स्टैटिक टाइप होता है। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें हम यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें, ठीक है, कि यूज़र का एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट को, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को यूज़ करने में कैसा रहेगा। सो अगर इसकी बात करें, इस पे टिक लगाए, मीन्स कि इसका एक्सपीरियंस अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बेस्ट होगा। इसकी वजह क्या है, कमेंट में बता सकते हैं। वैसे इसकी वजह ये है कि लाइक इसको अगर आप सामान डाल रहे हैं, जितना भी हैवी हो रहा है, आप इसके व्हील्स, टायर्स के थ्रू इसे आप आराम से ड्रैग कर सकते हैं। जबकि ये वाला जो है, ये वाला जो पुराना हम कह सकते हैं एक टाइप का बैग है, इसको आपने मतलब कि होल्ड करके खुद उठा के इसको कहीं भी ले जाना है तो आप इसे उठाएंगे। तो इन दोनों को हम कंपेयर करें, एज अ यूज़र एक्सपीरियंस हम इन दोनों का देखें तो इसका बेस्ट होगा। तो ये एक मतलब एक नॉर्मल आपको समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है यूएक्स की, ठीक है। इसमें यूआई की बात नहीं हो रही। यूआई में क्या चीज़ आएगी, इसकी कलर आएगा जो ब्राउन कलर है, या फिर इसका पिंकिश सा कलर है, ये जो है ये यूआई में आएगा। इसका इंटरफेस जो दिखने में कैसा है, लेकिन जो इसका एक्सपीरियंस है यूएक्स, उन दोनों को हम कंपेयर करें तो आई गेस ये वाला जो है ये सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल है, लाइक ये केचप की बॉटल है। पहले हम इस टाइप की बॉटल यूज़ करते थे,
इसमें और इसमें जो है ना डिफरेंस क्या है कि ये इजी नहीं है यूज़ करने के लिए। लाइक अगर आप इसमें केचप है तो उसको हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा, उसके निकलने में बहुत टाइम भी लगता है और अक्सर निकलती भी नहीं है। जबकि ये वाली अगर हम न्यू जो बॉटल डिज़ाइन है इसको हम देखें, इसका मतलब कि ये इसका जो ओपनिंग एरिया वो नीचे होता है। इसमें इजीली जब भी आप इसे खोलेंगे आप इजीली जो है केचप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है यूज़र एक्सपीरियंस की। यूज़र मीन्स कि आप जो केचप निकाल रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस मीन्स कि वो इसके साथ कैसा रहेगा। नेक्स्ट सिमिलर टू दैट वन, अगर एक डोर है उसका लाइक पुश करना है उसे, तो उसमें कौन से वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। पुश मीन्स उसे धक्का देना, उसे दबाना, ठीक है। तो अगर ये वाला है तो ये इसकी शक्ल से भी लग रहा है कि इसे मतलब कि इसे खींचना है, ये पुल के लिए है। जबकि अगर आपको सिर्फ पुश का एक्शन करना है तो आपको ये इस टाइप का डोर का जो क्या कहते हैं हैंडल है वो करना चाहिए, ताकि जो यूजर है वो सिंपली देख कर ही समझ जाए कि इसको हमने दबाना है, इसे खींचना नहीं है, इसे पुल नहीं करना। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल। लाइक पहले हम ये वाली अलार्म क्लॉक यूज करते थे और आजकल हम मोबाइल यूज करते हैं। इसका डिफरेंस भी क्लियर है। लाइक इसमें जो आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, जस्ट एक अलार्म बजता है, सेट करना होता है। इसमें आपको हर टाइप का मतलब कि ऑप्शन मिलता है। आप डिफरेंट एक मतलब कि अलार्म क्लॉक पे डिफरेंट अलार्म्स लगा सकते हैं डिफरेंट टाइम पे, 5 मिनट्स के गैप में या जैसे आप चाहें। इसके अलावा आप उसे नेम दे सकते हैं प्रॉपर कि ये किस चीज़ के लिए बारे में। इसके अलावा आप उसकी एनालिटिक्स देख सकते हैं कि आप किस तरह आपका आपने रखा हुआ है, उसको आप डिफरेंट यहाँ ऑप्शन जैसे मोबाइल में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक यूज़र एक्सपीरियंस है अलार्म जो है ऐप का। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाई यूआई यूएक्स इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आई डोंट नो, शो नहीं हो रहा। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ है तो आप साथ पूछ सकते हैं। मैम आप मुझे बता देना, ठीक है। कमेंट अगर कोई आए तो। समझ आ रही है नहीं आ रही, मैं तो बोल रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वन। व्हाई यूआई यूएक्स इज इम्पॉर्टेंट मीन्स के यूआई यूएक्स एक स्किल है जिसमें हम यूज़र के बारे में हर चीज़ करते हैं, उसके देख कर उसके बाद में एक ऐप डिज़ाइन करते हैं, मोबाइल ऐप या फिर कह सकते हैं आपके कोई वेबसाइट। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों, ये हम क्यों करते हैं। लाइक अगर हम ये ना करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लाइक एक मोबाइल ऐप आप बना रहे हैं, लेट्स से आप इन ड्राइव की एग्जांपल ले लें। एक मोबाइल ऐप इन ड्राइव लोग वालों ने बनाई है, ठीक है। तो उन्होंने ये जो ऐप बनाई है इसमें उन्होंने मतलब कि वो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि उन्होंने ये इन ड्राइव की ऐप बनाई है, ठीक है। क्या उन्हें ज़रूरत थी, और इस सारे प्रोसेस में उन्होंने यूआई यूएक्स पे मतलब यूआई यूएक्स पे क्यों वर्क किया है, क्यों उन्होंने इसे इम्पोर्टेंट समझा, ठीक है। अगर आप इसकी इन ड्राइव की केस स्टडी कंप्लीट देखें ना तो उसमें आपको समझ आएगी कि उन्होंने कंप्लीट इसका प्रोसेस करके उसके बाद इस ऐप को डिज़ाइन किया है। यकीनन यूआई यूएक्स डिज़ाइनर से इस ऐप को डिज़ाइन किया है, ठीक है। डिज़ाइन की बात हो रही है, मैं अगेन बता दूं यूआई यूएक्स जो है वो डिज़ाइन है, मतलब कि जो हम एक टूल में बनाते हैं। डेवलपमेंट अलग चीज़ है। डेवलपमेंट लाइक एक डिज़ाइन बन गया है उसको डेवलप करना, मतलब उसके अंदर कोडिंग करके उसे लाइव करना, वो अलग चीज़ है। यूआई यूएक्स इज जस्ट फॉर डिज़ाइनिंग, मतलब कि जैसा नाम से जाहिर है इट्स डिज़ाइनिंग। यूआई यूएक्स के साथ हमेशा हम डिज़ाइन लिखते हैं, डेवलपमेंट नहीं लिखते। Okay, so why it is important? First of all, first impression build trust means कि अब इसके क्या मतलब है। first impressions build trust. For example, एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ऐड किया है दिस वन। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये लाइव है अभी में। अगर आप इसे चेक करें ना तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इनको आप अगर आप देखें, ये है और एक ये है। अगर आप लेट्स से आप कोई गाड़ी से मतलब कि कार से रिलेटेड कोई चीज़ करना है या कोई बाइक से रिलेटेड, आप इस वेबसाइट पे आते हैं, आपने लिखा www दिस वन दैट मतलब इसका जो डोमेन है .com, तो आपका क्या इंप्रेशन होगा। आप ये देखेंगे कितनी क्लटर्ड मतलब कि इसका लेआउट है। आपको समझ आ रही है कि इससे मैंने क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रही। कलर्स देखें, इसके जो लेआउट का डिज़ाइन है, मतलब कि यहाँ टेक्स्ट ऐड किया है, देन ये कुछ भी जो है ना क्लियर नहीं है। सिमिलरली इस पर देखें कितना मेस सा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की ज़रूरत है कि वो आए, इसको देखे, इसको स्टडी करे कि इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है जो हमें इस पेज पे रखनी है और क्या चीज़ ऐसी है जो हम रिमूव करके इसको नीट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना फर्स्ट इम्प्रेशन जो है जो यूज़र का है वो हम देखेंगे। उसके बाद क्या चीज़ है, गुड डिज़ाइन इम्प्रूव यूजिबिलिटी। यकीनन एक अच्छा डिज़ाइन है
यूजेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, लोग उसे यूज़ करेंगे और उस पर मतलब कि विजिट करना आसान होगा, तो वहाँ से वो परचेजिंग भी करेंगे, चाहे वो साइट हो या ऐप हो। इसी तरह डायरेक्टली इम्पैक्ट सेल्स ग्रोथ एंड कस्टमर लॉयल्टी, मीन्स कि सेल्स भी यकीनन ज़्यादा होंगी अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है, क्लीन लेआउट है, यूज़र को इजीली समझ में आ रहा है, तो उसकी सेल्स में भी ग्रोथ में भी इजाफा होगा। इसी तरह a seamless and positive experience encourages users to take desired actions such as making purchases leading to increased conversions. ये वही बात है जो मैंने बताई है कि अगर वो एक यूज़र आया है आपकी वेबसाइट पे, उसने देखा है कि कितनी क्लीन ऐप है, हर चीज़ समझ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल वो वेबसाइट पर आया है और उसने कोई चीज़, लेट्स से उसने कार के बारे में कोई चीज़, कोई डील है, समथिंग, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है, कार ये उसने बाई करनी है, उसको हर चीज़ सामने मिल गई है इजीली, उसने चेकआउट कर लिया है, तो आपकी बिजनेस जो है उसमें ग्रोथ में इसी तरह इजाफा होगा कि आपकी जो है ना, कस्टमर्स आएंगे, एक बार आएगा कस्टमर, दूसरी बार फिर आएगा, तीसरी बार फिर आएगा, तो ये आपका जो है ना बेसिकली पूरा जो प्रोडक्ट है वो रैंक करेगा इस तरह। ये सब कुछ किस लिए होगा कि आपका यूआई यूएक्स पे आपने सही वर्क किया और उसका डिज़ाइन एक अच्छा डिज़ाइन बनाया है। ओके, सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, इसका रोल क्या होता है आपको समझ आ भी गई होगी मोस्टली। रोल यही होता है कि वो यूज़र को नीड्स को अंडरस्टैंड करे, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक ऐप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट मिला है ऐप का, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो यूज़र है जिसने ऐप को यूज़ करना है, ठीक है, वो आप भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है जिसके लिए आप ऐप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल फूड पांडा या InDrive की ऐप है, तो कोई भी यूज़र हो सकता है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, बड़ा कोई एडल्ट हो सकता है, कोई यंग मैन या कह सकते हैं कोई ओल्ड लेडी, कोई भी हो सकता है। उसको आपने देखना है कि उसकी नीड्स क्या हैं, वो क्या चाह रहा है। अगर वो एक ऐप पर आया है, फूड पांडा की ऐप पर आया है, तो यकीनन उसने कुछ बाय करना है ना, कोई फॉर एग्जांपल उसने कोई पिज़्ज़ा बाय करना है, तो उसने अपनी उसकी नीड्स यही होंगी, उसने यूएक्स डिज़ाइन उसकी नीड्स को समझना है पहले, सबसे पहले ये यूएक्स के पार्ट में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब नीड्स समझ ली, हर चीज़ उसने एक फ्लो क्रिएट कर लिया, जो यूएक्स का पार्ट है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। देन उसने वायर फ्रेम्स क्रिएट करने हैं, वायर फ्रेम्स मीन्स कि एक रफ डायग्राम्स बनानी है कि किस तरह कौन-कौन सी स्क्रीन्स जो हैं हमने ऐप की बनानी है और किस तरह फ्लो जाएगा, ठीक है। प्रोटोटाइप मीन्स कि उसने उसको एक्शन में देखना है कि जब इस बटन पे वो क्लिक करेगा तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, इस बटन पे क्लिक करेगा तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। एंड देन फाइनल जो मेन नीट डिज़ाइन होता है एक ऐप का बना हुआ, वो प्रेजेंट करना है। अच्छा, ये टर्म जो है इंशाल्लाह आगे कोर्स में जो है डिस्कस करेंगे बाद में। वर्क विद डेवलपर्स एंड स्टेक होल्डर्स, जो यूएक्स डिज़ाइनर का ये भी रोल है कि जब वो डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए तो वो डेवलपर्स को समझाएगा कि ये इस तरह फ्लो चलेगा, मतलब डेवलपर्स के साथ भी उसे काम करना पड़ता है, चाहे वो ऐप पे वर्क कर रहा है या वेबसाइट पर। स्टेक होल्डर्स लाइक जिनका जो प्रोडक्ट है, जिन्होंने प्रोजेक्ट दिया है, उनके साथ भी यकीनन मीटिंग्स होती हैं कि वो कहेगा कि हमें इस ऐप का ये डिज़ाइन जो है ये सही नहीं लग रहा, आपने इसको इस तरह रखना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो ये कहेगा कि इस बटन का कलर चेंज कर दो या इस कंटेंट में ये चीज़ चेंज कर दो, तो उनके साथ भी वर्क करना पड़ता है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, उसका रोल इसमें शामिल है। देन करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं उसकी, एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर वो अर्न कैसे कर सकता है, इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रीलांसिंग कर सकता है, लाइक फाइवर या पर एजेंसीज के साथ वर्क कर सकता है, प्रोडक्ट टीम्स के साथ वर्क कर सकता है, लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ओपन करके उस पर वो कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन बस बात वही है कि आपको अपने रोल में जो है ना, आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज टूल्स वी नीड, लाइक हमें टूल्स क्या क्या ज़रूरत है यूएक्स डिज़ाइनिंग करने के लिए। अच्छा, ये जो मैंने 4 यहाँ मेंशन किए हैं, ये बाकी 3 इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको नहीं भी आते तो इट्स फाइन, लेकिन जो फिग्मा है ना, फिग्मा ये मेन टूल है, ठीक है, ये मेन टूल है हमारा। मेन टूल जो है हमारा फिग्मा है। फिग्मा क्यों है कि जितनी भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे, यूएक्स का वर्क करेंगे, खैर यूएक्स का वर्क तो टूल पे इतना डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो डिज़ाइन है, जो यूआई का पार्ट है, वो हमने फिग्मा में ही करना है, ठीक है। ये फ्री टूल है फिग्मा। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ना हम इसका देखेंगे कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कैसे इस पे वर्क करना है। ओके, देन
हाउ टू अर्न एज अ यूएक्स डिजाइनर। अगेन वही बात है जो पीछे मेंशन थी पॉइंट्स में कि आप किस तरह अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक स्किल सीख ली, आप उसकी प्रैक्टिस करके आप कुछ उसका इंटरमीडिएट लेवल की आप एक यूएक्स डिजाइनर भी बन गए। अब आपने अर्निंग कैसे करनी है? अर्निंग की फर्स्ट पार्ट ये है कि ये अब आप पर है, आप कौन सा इनमें से चूज करते हैं। या आप फ्रीलांसिंग करते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं, या आप फुल टाइम रोल्स करते हैं किसी रिमोटली या ऑन साइट किसी कंपनी के साथ करते हैं, या आप पे डिपेंड है, या आप टीचिंग करते हैं। ये भी है कि अगर आप सीख जाएं तो आप साथ साथ लाइक मी, मैं फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं करती हूँ, मैं क्लाइंट के साथ भी वर्क करती हूँ, मैं एक एजेंसी के साथ भी एज अ फुल टाइम रोल के साथ मतलब कि रिमोटली वर्क करती हूँ। और इसके अलावा मैं एज अ मेंटोर भी वर्क करती हूँ, मतलब कि कोर्सेज भी हैं मेरे, और इसी तरह टीचिंग भी करती हूँ। तो ये अब आप पे डिपेंड है कि आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, आपका शौक क्या है और कितना आप किस चीज़ को टाइम दे सकते हैं। ओके सो अच्छा, आज वैसे लेक्चर में मैंने इतना ही ऐड किया था। लेट मी चेक। ओके सही है। अच्छा, मैं आपको इसके अलावा एक चीज़ दिखा देती हूँ। जो हमारा पार्ट ये था कि आपने अर्निंग करनी है और कैसे करनी है, उसमें एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें क्या है कि जस्ट आई वांट यू टू सी कि अगर हम एक लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे ही आए ना, लिंक्डइन पर, तो उस पर ही आपको कितना मतलब कि लिंक जो कितनी जॉब्स हैं, कितना स्कोप आपको मिल रहा है। अच्छा, आज वैसे नेटवर्क का कुछ इशू है, इस नेटवर्किंग। ओके फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोफाइल है। अगर आपकी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लिंक्डइन की प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट करें। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। लोकेशन मैंने वैसे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट की हुई है, इसे मैं पाकिस्तान कर देती हूँ। नेट से पाकिस्तान में चेक करते हैं कि मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन कि अभी करंटली कितनी जॉब्स हैं जो ओपन है। ठीक है, मतलब कितनी ऐसी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो हमें यूआई यूएक्स की जॉब रोल के लिए ऑफर कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स चेक करें, ये इस्लामाबाद में है कंपनी, ये ऑन साइट इसे चाहिए। इसी तरह ये भी इस्लामाबाद में ऑन साइट इसे चाहिए, इसे हाइब्रिड रोल है इसका। ये रिमोट वर्क है, वेब डिज़ाइनर। ये देख लें, ये भी रिमोट है। ये भी यूएक्स की ऑन साइट, ये भी ऑन साइट। ये प्रोडक्ट डिज़ाइनर बेसिकली यूएक्स डिज़ाइनर ही होता है। ये रिमोट वर्क ऑन साइट, इसी तरह वेब एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर ऑन साइट। मतलब कि बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसे नीचे स्क्रॉल करती जाऊँ 1 2 3 इसी तरह अगर आप यूएस का कर लें और यहाँ अगर आप चेक करें तो ये देखिए, यहाँ पर भी मतलब कि बहुत ज़्यादा रिमोटली यकीनन आप करेंगे। रिमोट वर्क में अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको फ्रीलांसर चाहिए एज ए यूएक्स डिज़ाइनर, या एज ए कंपनी में उन्हें कोई एम्प्लॉय चाहिए। कैन से दैट क्योंकि अच्छा मोस्टली जब हम लेक्चर या क्लास लेते हैं तो स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि एट द एंड अगर हम ये सीख जाते हैं तो हमें जॉब्स ऑफर होंगी या हम कहाँ पर सेल कर सकते हैं अपनी सर्विस। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपवर्क या फाइवर की इतना हाई कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर जाएं। कि टू बी ऑनेस्ट अब वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और इतने न्यू बिगिनर या आप कह सकते हैं एक न्यू बी जो होता है वो आता है तो उससे इतना मतलब कि सपोर्ट नहीं किया जाता है। लक की भी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, इस पे आपको प्रोजेक्ट बेस्ड भी वर्क मिल जाएगा। आपको एजेंसीज भी हायर कर सकती हैं, मतलब कि हायरिंग कर रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने तो लिंक्डइन को बहुत ही कहते हैं ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म पाया, और मुझे जितनी भी मैंने जॉब्स की हैं या क्लाइंट्स हैं वो मुझे, क्लाइंट्स तो खैर फाइवर से भी आए हैं, लेकिन कह सकते हैं आप लिंक्डइन से भी ले सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर जो एजेंसीज हैं ना वो आपको ईजिली यहाँ पर आपको मिल जाएंगी कि जो हायरिंग करती हैं ऐसा यूएक्स डिज़ाइनर के रोल के लिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अभी भी हम नंबर 2 पेज पर जाएँ तो यहाँ पर भी ये रिमोट है, कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरह ये सारी यूएस की जो है ना कंपनी है, यूएस बेस्ड है। ठीक है, यकीनन आपको इस सैलरी भी डॉलर्स में ही देंगे। तो मतलब कि बहुत यूएस का बहुत ज़्यादा स्कोप है।
बस मेन चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। UI/UX का मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ, UI/UX डिफरेंस अगर हम देखें यहाँ पर भी क्लियर नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा इजी हो, लाइक जैसे मैंने आपको शो किया ये वैसे ही है, लाइक UI उसका लेआउट, UX में ये बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। मतलब कि उसको पहले स्टडी करना क्या चीज़ है, कैसे है। UI को उसका हमेशा कलर्ड उसे हम शो करते हैं, लाइक कि जो कलर की जो चीज़ें हैं, कलरिंग करना, उसमें जो फॉन्ट्स ऐड करना, उसमें ग्राफिक्स ऐड करना, ये सारा UI में आ जाएगा, ठीक है। और UX में आप कह सकते हैं ड्राई चीज़ें हैं, लाइक इंटरेक्शन डिज़ाइन, वायर फ्रेम करना, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, सिनेरियोज, यूजर रिसर्च, ये कुछ टर्म्स हैं। मतलब कि ये हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले जो है उस पर हम वर्क करते हैं, ये UX में आती हैं। ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसी एक चीज़ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। लाइक दिस वन, इंटरेक्शन डिज़ाइन, लेआउट, विजुअल एंड यूजर एक्सपीरियंस में ये सब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, UI/UX का मतलब कि आज की जो क्लास थी जस्ट एक ब्रीफ ही देना था, एक सिंपल इंट्रोडक्टरी क्लास आप कह सकते हैं। लाइक व्हाट इज़ UI/UX, इसके अलावा मतलब कि इसकी जो थोड़ा स्कोप क्या है, जॉब्स कहाँ पर आपको मिलेंगी, और ऑल दैट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि UI/UX में अब जो फर्स्ट स्टेप है फिग्मा, फिग्मा जो इसका टूल है हमने इंस्टॉल कैसे करना है, और उस पर हमने जो है वर्क स्टार्ट कैसे करना है। फिग्मा, इसका मीनिंग है फिग्मा सिंपली। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, मेरा भी लॉग इन है तो ये इस तरह ओपन हो रहा है, लेकिन आपका जब होगा वो फिग्मा का लाइक सेव करने का, डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट हम कह सकते हैं डैशबोर्ड है, जहाँ से हम डिफरेंट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन, फिर जैम, इसका हम ओवरव्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस क्या क्या चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, आप डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, आप ये डिज़ाइन में क्या क्या वर्क होगा, मतलब कि आपका कैसे किस तरह करेंगे ना। बेसिकली जितना मैंने वर्क किया है सारा यहाँ डिज़ाइन पढ़े हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड फिग्मा। ये एक कह लें बस ये एक टूल आपको समझ आ जाए और आपको UX की स्ट्रेटजी समझ आ जाए कैसे करने का, फिर अच्छे UI/UX डिज़ाइनर बन सकते हैं। सो ओके, सो दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी क्लास। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर लें कमेंट में, मैं देख रही हूँ साथ में आपको आंसर कर दूँ आज की क्लास के हवाले से। Dear participants, if anyone have any question, you can ask from Ma'am Maha. आई होप सो सबको समझ आ गई होगी। तो इजी था ये इसका ऑलरेडी जो यकीनन जिन्होंने इस कोर्स में इनरोल किया उनको पहले से ही आइडिया होगा, उनको एक शौक होगा पढ़ने का, तो उन्होंने किया है इसमें इनरोलमेंट। ओके, क्लियर है, दैट्स गुड। तो इंशाल्लाह अभी हमने ये पढ़ा है ना, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा हम इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, इसको हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। उनका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आई डोंट वांट कि हम इसको मज़ीद जो है ना डिटेल ऐड कर लें। शो अस सम ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, ओके, मतलब कुछ दिखा देती हूँ। maybe this one. ये प्रोजेक्ट है, ये अभी ये नहीं कह सकते कंप्लीट है, इनपे वर्क चल रहा है, ठीक है। ये दोनों आपको दिखा देती हूँ, बाकी इंशाल्लाह जैसे होगा ना और साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी। और भी ये एक वेबसाइट का बेसिकली प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये अब देखिए ये एक डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ये हम इसे कह सकते हैं ये UI का जो पार्ट है। UX का पार्ट है उसको हम उसमें ज़रा थ्योरेटिकल होता है, लाइक उसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिएट और मतलब कि यूज़र फ्लो क्रिएट करना, उसके लिए जो है ना हम जो फिग्मा का फिग जैम वाला ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी हम जब लेक्चर में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। अब ये UX की रिसर्च के बाद जो डिज़ाइन बना है ना वो ये है, ठीक है। ये डिफरेंट पेजेस का एक वेबसाइट है, होम पेज है, ये अबाउट अस है। अब इसमें जो एक एक चीज़ है ना, लाइक ये देखिए
ये हेडिंग आप कह लें पेज की, ये इमेज ऐड की हुई है, इस तरह ये एक है, वो है नंबर्स हैं, उसके नीचे उसके थोड़ा सा लिखी हुई हेडिंग आप कह लें, जो भी एक पैराग्राफ सा है छोटा सा, ये 3 स्टेप्स हैं, इसमें ये आइकन्स यूज हुए हैं, इस तरह ये इमेज यूज हुई है, ये लेआउट है, ये कैसे क्लीन है, ये हर चीज़ जो है हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इस फिग्मा की जो ये देखें, जिसे हम कहते हैं कि फिग्मा की जो एक प्रोजेक्ट की जो इन्वायरमेंट है ना, उसको हम ये कहेंगे। ये इसका मेन डैशबोर्ड था, जब हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं ना, वो ऐसे शो होगा। ठीक है, इसमें यहाँ से हम पेजेस कैसे बना सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इसकी कोई डिजाइनिंग है वो कैसे कर सकते हैं, हम टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, ये इसका नीचे का जो टूल है, यहाँ टूल्स हैं, यहाँ पर फ्रेम सेक्शन कैसे ऐड करेंगे हम, इसका यहाँ पर कोई शेप्स ऐड करनी है, पेन टूल कैसे यूज़ करेंगे, या पेंसिल या टेक्स्ट कमेंट, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें फिग्मा के अपने कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक ऑटो लेआउट, कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स, प्रॉपर्टीज, स्टाइल गाइड, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, वो हम वन बाय वन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और एक ये एक है, अच्छा इस पे ये देखें छोटे छोटे जो आपको लग रहे होंगे, ये कमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, ये क्लाइंट के कमेंट्स हैं, इस पर मतलब कि जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर कमेंट भी ऐड कर सकता है, कि अभी देखिए इसने किया हुआ है कि रियली लाइक दिस वेबसाइट, फॉर मी इट्स बेटर देन द ब्लैक वन। ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट था, ये इन्होंने पता नहीं ये किसी से इन्होंने डिज़ाइन करवाया था और ये इनको अच्छा नहीं लगा था, फिर ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया और मैंने इसको रीडिज़ाइन किया। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर मैंने ये लिखा हुआ है, तो ये उसके बारे में, ये इसका होम पेज है, देन अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सारे पेजेस के डिज़ाइन वन बाय वन बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ जो है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का काम है और उसने करनी होती है। ठीक है, लाइक एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट है या कोई ऐप का प्रोजेक्ट है, आपके पास आया है, आपने उससे किस तरह मतलब कि स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है, ये आपका रोल है एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। ठीक है, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें काइंडली। नो प्रॉब्लम। एंग्री बर्ड, ओके। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैंने वो करनी थी मैम, आप भी ज़रा अगर देख लें, अगर क्लास की टाइमिंग स्टूडेंट्स से ज़रा डिस्कस कर लें, अगर हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं, लाइक 3:30 PM ऐसा कुछ, तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि ये टाइम एक्चुअली ये होता है कि मेरी ड्यूटी आवर्स है ना, लाइक 6 PM टू आप कह सकते हैं 3 AM तक। क्लास हो तो जाएगी, इसमें मैं थोड़ा टाइम निकाल लूँगी, लेकिन वो कंप्लीट फोकस नहीं रहेगा। तो एक बार आप अगर ग्रुप इनका कोई बना हुआ है, वहाँ आप एक बार टाइमिंग डिस्कस कर दें, मैं आपको बता दूँगी कि कौन-कौन सी 2 टाइमिंग ऐसी हैं, अगर उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें तो वो बेस्ट होगा मेरे लिए, मतलब डे टाइम में ना। वरना फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यही बात है कि इस टाइम मेरा अपना वर्क होता है, तो थोड़ा एक प्रेशर होता है ना काम का, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी वाइंड अप कर रही हूँ इसे। तो बस ये अगर डे टाइम में होता है तो वो हम क्लास को लेंथी भी कर सकते हैं और एक पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो काइंडली ये ज़रा एक बार ग्रुप में डिस्कस कर लेना, लाइक 3:30 PM और 3 PM टू 4 PM और 3:30 PM टू 4:30 PM, इस तरह का टाइम का क्लास टाइम एडजस्ट हो सकती है, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, फॉर श्योर मैडम, अगर पॉसिबल हुआ तो हम ये डिस्कस कर लेंगे, फिर हाँ ये एक बार आपको। डिस्कस कर लें, स्टूडेंट से पूछ लें जैसे उनको मतलब कि ईजी लगे ना। ओके मैम, ओके, आप आपकी जो पॉइंट थी वो हमारे पास आ गई, हम ये डिस्कस कर लेंगे। जी जी, आप डिस्कस कर लें। अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपको फिर वो टाइमिंग्स बता देंगे कि कौन से टाइम स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे। एक्चुअली हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर वो कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के जी सर स्टूडेंट्स ने हैं, तो उन्होंने बात की थी मुझसे ये कि वो डे टाइम में बिजी होते हैं, लाइक चलिए आप बात कर रहे हैं एक बार, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा वो इजी रहेगी टाइमिंग, वरना इस टाइम हो तो जाता है लाइक अभी, लेकिन वो एक ड्यूटी आवर्स होते हैं तो मैं थोड़ा स्ट्रेसफुल माइंड चल रहा होता है, काम पेंडिंग होता है, तो यस ये मैम, बात आई कैन डिस्कस कर अंडरस्टैंड। लें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैंने डेट शेयर कर दी है, आई गेस ट्यूसडे को है, उसमें फिर हम इसको प्रॉपर जो है कोर्स को स्टार्ट करेंगे और इसमें जैसे स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे इंशाल्लाह, वो आप देख लेंगे। फॉर नाउ, इंशाल्लाह मैम, वी विल डिस्कस इट एंड विल लेट यू नो इफ हमारे पास पॉसिबल हुआ तो हम फिर आपको वो टाइमिंग्स बता देंगे। चलिए सही है, थैंक यू सो मच। आई थिंक और यू क्वेश्चन आर है, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम मैम। नो प्रॉब्लम।
Okay. Thank you so much, everyone. Uh, Participants, if you have any question. I think today we have got very talented students as they all are clear on the topic. Yeah. So we need to wrap up the session. Just quickly recall what we covered today. We just explored the difference between UI and UX. We learned how these designs impact the user interest and digital products. We also discusses that UI is more about the attraction, like it catches the eye of the users, and UX is more about the quality. I encourage all of you to start observing the digital products you use every day. Notice what we feels smooth and enjoyable, and what frustrates you. This that is the first awareness step to becoming a thoughtful designer. So thank you all for your time, especially to Ma'am Maharias, who gives us very insightful session on about digital skills. So it was the first session based on this course. We will further have some more classes about this course, and I'm sure that we will attend the classes. Looking forward for your participation. For that, take care of yourself, and Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz.